শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 20 থেকে শুভারম্ভ করব। आप में से कौन रिपीट करना चाहेंगे आज? हरे कृष्णा प्रभु जी करें। यस। সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া, সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া, পূর্ব প্রেম ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘারিয়া, পূর্ব প্রেম ভার ভণ্ডারে মুদ্রা উগাড়িয়া, পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন, পাঁচে মিলি প্রেম যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বারে অনুক্ষণ, पंचे मिली लुटे प्रेम करे आस्वादन, যত যত পিতৃ বড়ে অনুখান। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অপ্রাকৃত প্রেমের ভান্ডার। ক্লিয়ার অভি তক? যদিও পূর্বে যখন কৃষ্ণ এসেছেন তখন সেই প্রেম ভান্ডারও তার সঙ্গে এসেছেন, এবং তা ছিল শিল মোহর দিয়ে রুদ্র रुद्ध शिलो मोहर दी रुद्ध। आगे भी आया बॉक्स शील मोहर दी रुद्ध, एकदम सील पैक। क्या लिखा है हिंदी में? सील पैक ही लिखा है, सील पैक ही लिखा है, किंतु वह पूरी तरह से सील बंद था। इंग्लिश में क्या लिखा है? although that storehouse of love certainly अरे बाबा, came, पूरा सेंटेंस वही बोलिए ना, सील पैक क्या लिखा है? it was sealed, he was present, it was sealed. अच्छा, When he was present, it was sealed. That is what is written there. আচ্ছা। কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন পঞ্চতত্ত্ব সব অবতীর্ণ হলেন তখন তারা শিলমোহর ভেঙে সেই কৃষ্ণ প্রেম ভান্ডার লুণ্ঠন করে সেই প্রেম আস্বাদন করলেন, আর করালেন না। আর যতই তারা সেই প্রেম রস আস্বাদন করলেন ততই তাদের তৃষ্ণা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তাৎপর্য, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলা হয় মহাবাদন্য অবতার, কেননা যদিও তিনি হচ্ছেন স্বয়ং কৃষ্ণ, তবুও তিনি দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধজীবদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের থেকেও বেশি করুণা প্রদর্শন করেছেন। श्रीकृष्ण भी देखिए भक्ति प्रचार किया है द्वापर युग में, भगवत गीता का ज्ञान दिया है अर्जुन को और हम लोगों को, तो वो भी तो है। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে এসেছিলেন তখন তিনি কেবল শরণাগত ভক্তদেরই রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন সপার্ষদ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন তিনি কোনো যোগ্যতার অপেক্ষা না করে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেছিলেন। তাই শ্রী রূপ গোস্বামী বুঝতে পেরেছিলেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউই নন, কেননা পরমেশ্বর ভগবান ছাড়া আর অন্য কেউ অত্যন্ত দুর্লভ এই ভগবত প্রেম এইভাবে দান করতে পারেন না। तो रूप गोस्वामी समझ गए, इसलिए शायद उन्होंने ये बताया था, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्रिशे नमः। रूप गोस्वामी द्वारा ही है ना ये। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, फिर कृष्णा के टाइम क्या हुआ था बता रहे हैं यहाँ पर? सिर्फ शरणागत भक्त लोग को ही दिया था, जैसे अर्जुन शरणागत, उनको भगवत गीता का ज्ञान सुनाया। लेकिन महाप्रभु ना जाति धर्म वर्ण, जाति, अच्छा जाति माने देखिए महाप्रभु वो दक्षिण भारत में जब गया थे उसमें पठान लोग को भी भक्त बनाया था, मालूम है ना। तो जाति का विचार नहीं किया। हरिदास ठाकुर को भी, हरिदास ठाकुर तो डिवोटी था, फिर उनके साथ भी, तो वो भी तो जाति में यवन कुल, लेकिन फिर भी उनको उनके साथ आदान प्रदान होता था। फिर जाति धर्म वही हो गया। और वर्ण, महाप्रभु शूद्र वर्ण में जो दासी है दुखी, उसको भी कृष्ण प्रेम दिया। इनफैक्ट सबसे पहले महाप्रकाश लीला में उन्हीं को दिया है ना। यस श्रीवास प्रभु।
হরে কৃষ্ণ ধন্যবাদ। প্রভু এখানে বলছে লুণ্ঠন করছে, এখানে কি অর্থ বোঝা যাচ্ছে লুণ্ঠন করে? পুরো সেন্টেন্সটা বলুন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যখন পঁচাত্তর সহ অবতীর্ণ হলেন, তখন তারা শিলমোহর ভেঙে সেই কৃষ্ণদেবের ভান্ডার লুণ্ঠন করে সেই প্রেম আস্বাদন করলেন। তো এই প্রেম আস্বাদনের সঙ্গে লুণ্ঠনের কি সম্পর্ক? আস্বাদন করতে গেলে তো বক্স ভাঙতে হবে, খেতে হবে। তো লুণ্ঠন, লুণ্ঠন শব্দটা কেন ব্যবহার করা? একদম একদম মানে লুটে নিয়েছে। আর দেখুন, আমার একটু আপত্তি আছে এটা, কারণ কি অনুবাদে বলা হচ্ছে বিতরণের ব্যাপারে, আর তাৎপর্যে বলা হচ্ছে আস্বাদনের ব্যাপারে। আসলে শ্লোকেও বলা হচ্ছে আস্বাদনের ব্যাপারে। দেখুন, লুঠে প্রেম করে আস্বাদন। তো লুঠে প্রেম পুরো নিজেরাই বক্স খুলে একদম লুঠে প্রেম আস্বাদন করে এইভাবে। इसमें बहुत क्लियरली लिखा है, when he was present it was, but when Sri Chaitanya Mahaprabhu came with associates of Panchatattva, they broke the seal and plundered the storehouse to taste transcendental love of Krishna. তো নিজেরাই এনেছেন, নিজেরাই বক্সটা ভেঙে নিজেরাই আস্বাদন। And plundered, that's why ইউজুয়ালি ইউজ হয় অন্যদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। হ্যাঁ, কিন্তু নিজেরাই কৃষ্ণ প্রেম নিয়ে এসেছেন, বক্সটা খুলে নিজেরাই আস্বাদন করেছেন। তো এখানে নিজেই তো অপ্রাকৃত প্রেমের ভান্ডার। হ্যাঁ, তো লুণ্ঠন শব্দটি কেন ইউজ করা হয়েছে এটাতে ওনার আপত্তি। বুঝতে পেরেছেন প্রশ্নটি? করুণা রাধে মাতাজি, ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট হি ইজ আস্কিং? plundered word na, luntan mane plundered to English mein. Plundered माने more like a distributor ना? Plunder का synonym क्या है? Plunder is to take out. Take away. Take away, yes. Plundered the storehouse to taste transcendental love of Krishna. The more they tasted it, the more their thirst for it grew. हाँ, प्लंडर माने भी लूटर्स लिखा हुआ है इंग्लिश में। लूट करके बांटा लोगों को, अपने भी है दूसरों को। लूट के बांटा अलग चीज होता है। लूट करके बांटा क्या? जब खुद ही लाया, खुद ही जो चीज लाते हैं उसमें लूटने का क्या सवाल होता है? नहीं, स्टोर हाउस came during the time of Krishna, but Chaitanya Mahaprabhu with his associated, they broke open the seal and plundered the storehouse. So वही तो प्रश्न है। अरे आप बार-बार सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। First understand the question. Do you understand what he is asking? Yes, he's asking the meaning कि plundered का क्या मतलब है? लूटने का। No, he's asking why the word plunder has been used. The person who has brought the thing, why will he plunder? Plunder or looting usually happens from others. First understand the question. हाँ, तो इसमें यही तो लिखा है ना कि स्टोर हाउस came with Krishna when he was present, but he distributed it very selectively. Chaitanya Mahaprabhu के समय में it was plundered, the seal was broken and distributed to everyone. Distributed नहीं, इकने आस्वादन के बारे में लिखा हुआ है। And store house to taste, distributed why and the taste. person who has brought the stuff, why will he plunder and taste? He can just open and taste. Yes, বঙ্কিম প্রভু বলুন। আবার নতুন কিছু বলবেন না দয়া করে। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, দণ্ডবত প্রণাম। ওখানে পঞ্চতত্ত্ব বন্দনায় বলেছে হরিনাম গোলকেতে ছিল গোপনে, সেখান থেকে নিত্যানন্দ নিয়ে এসে সবাইকে বিক্রি করেছে। সেটা বন্দনায় পরিষ্কার বলে গেছে। হরিনাম ছিল গোলকেতে ছিল গোপনে, নিত্যানন্দ আনিয়া সবার দ্বারে দ্বারে বিতাইল হরি নিত্যানন্দ প্রভু। এটা পঞ্চতত্ত্ব বন্দনে বলা আছে। হরে কৃষ্ণ প্রভু, রাধে রাধে। राधे राधे, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। बोलिए अशोक प्रभु, जल्दी बोलिए, अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु बोले कि जो भगवान कृष्ण आए थे तब तो भगवान लिमिटेड लोगों के लिए दिए थे, और ये चैतन्य महाप्रभु जब आए हैं तो ये तो खुद ही विपलम सेवा में मतलब उनके मगन थे, उनके प्रेम में विरह कर रहे थे। तो विरह में जो प्रेम होता है वो सानिध्य में नहीं होता है, वो श्रेष्ठ कहा गया विपलम सेवा। तो जो भी हो, उस समय सबों को, अपने तो थे ही, साथ साथ एसोसिएट और जो जितने जुड़ते थे सबको मतलब नाच गान सब कुछ, भजन जितना हो सकता है खुशी, तो वो तृष्णा बढ़ती जाती थी। यहाँ दिखाया गया तृष्णा बढ़ रही है, तो वो जितना नाम लेते थे, जितना याद करते थे, उतना बढ़ती जाती थी और ये लोग मगन होते जाते थे। तो इतना मगन हो जाते थे कि मतलब विभोर भी हो जाते थे। तो इसी चीज को शायद दर्शाया गया है।
ইয়েস মনীষা মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ওখানে বলা আছে না যে স্টোর হাউসে ইট ওয়াজ সিল্ড, তো সিল্ডটা তারা ভেঙে সেটা লুণ্ঠন করেছে, তাই হয়তো লুণ্ঠন ব্যবহার করেছে আই গেস। গুড পয়েন্ট, দিস ক্যান বি আ পয়েন্ট। লুণ্ঠন করে আস্বাদন করেছেন। ओके यस कुड बी। गोलोकेर प्रेम धन वेरी वेरी सीक्रेट चीज, उसको खोलना भी तो लूटते ही है ना, कुछ अगर सीक्रेट चीज जो बक्से में बंद पड़ा हुआ है। एनीवेज या 22 नंबर श्लोक। पुनः पुनः पियाइया হয় মহামত্ত, पुनः पुनः पियाया होय महामत, নাচে কান্দে হাসে গায়ে জইছে মদমত্ত। नाचे गांधे हासे गाए जोइछे मदमत। এভাবেই পঞ্চতত্ত্ব স্বয়ংই পুনঃ পুনঃ সেই ভগবত প্রেমামৃত অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে সকলকে পান করিয়ে প্রেমোন্মত্ত হলেন। তারা সেই আনন্দে এমন ভাবে নাচতেন, কাঁদতেন, হাসতেন, গান করতেন, তা দেখে মনে হতো যেন তারা উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। তাৎপর্য, মানুষ সাধারণত কীর্তন ও নৃত্যের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। গোস্বামীদের মহিমা বর্ণনা করে শ্রীনিবাস আচার্য বলেছেন, কৃষ্ণ কীর্তন গানানর্তন পর প্রেমামৃতাম্ভ নিধি। কেবল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার পার্শ্বদেরাই নৃত্য কীর্তন করেননি। পরবর্তীকালে স্বরগোস্বীরাও সেই পন্থার অনুসরণ করেছেন। বর্তমান কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনেও এই পন্থার অনুগামী। তাই কেবল কীর্তন করে এবং নৃত্য করে আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে প্রবলভাবে সাড়া পেয়েছি। श्रील प्रभुपाद ने भी तो कीर्तन से ही शुरू किया था टॉमकिंसन स्क्वायर में। আমাদের বুঝতে হবে যে এই নৃত্য কীর্তন জড়জগতের বস্তু নয়, তা হচ্ছে চিন্ময় ক্রিয়া। কেননা মানুষ যতই এই নৃত্য কীর্তনে যোগদান করেন ততই তিনি ভগবত প্রেমামৃত আস্বাদন করেন। পাওয়ারফুল তাৎপর্য। পাত্রা পাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান, पात्र पात्र विचारे नाही, नाही स्थान स्थान, যেই যাহা পায় তাহা করে প্রেমদান। যেই যাহা পায় তাহা করে প্রেম দান। ভগবত প্রেম বিতরণ করার সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার পার্শ্বদেরা কোনো যে যোগ্যকে অযোগ্য সেই কথা বিচার না করে, স্থান অস্থানের বিচার না করে, সেখানে যাকে পেয়েছেন তাকেই ভগবত প্রেম দান করেছেন। यस सत्यभामा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इसमें बोला गया है कि चैतन्य महाप्रभु उनके संगियों के साथ कीर्तन नाटक प्रदर्शन करते थे, किंतु अगले पीढ़ी में 6 गोस्वामियों का भी 6 गोस्वामी उनका अनुसरण किया है। तो चैतन्य महाप्रभु जब थे तो उसी टाइम तो गोस्वामी लोग थे, तो अगले पीढ़ी क्यों बोला गया यहाँ पे? अगले नेक्स्ट जनरेशन इसीलिए बोला गया है क्योंकि उन लोग मैंने ये उम्र से नहीं लेकर जनरेशन, उन लोग नेक्स्ट पीढ़ी मैंने डिवोशनल सर्विस में तो नेक्स्ट पीढ़ी है। क्योंकि देखिए इन लोग को महाप्रभु ने दीक्षा दिया या नित्यानंद प्रभु ने दीक्षा दिया, तो परंपरा में तो नेक्स्ट जनरेशन ही है माता जी। उस टाइम तो अवेलेबल थे ना सर, तो नेक्स्ट पीढ़ी फिक्स है। अवेलेबल माने आप उम्र को ला रहे हैं, मैं उम्र को नहीं ला रहा हूं। जैसे क्या बोले, जैसे गुरु नहीं थे, गुरु भाई नहीं थे। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जब थे तब परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी गुरु महाराज भी थे, लेकिन उनको दीक्षा दिया, संन्यास दिया, तो नेक्स्ट जनरेशन बोला जाएगा ना। स्पिरिचुअली तो नेक्स्ट जनरेशन ही हुआ ना। यस प्रभु जी बोलिए। यस बमकी प्रभु बोलो। ওখানে তো পরিষ্কার ভজনে বলে গেছে যে 6 গোস্বামী যবে বজে করিল বাস, রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা কঠিন প্রকাশ। এই তো নেক্সট পিড়ি হয়ে গেল না,
ভগবান যে ছয় গোস্বামী যখন বৃন্দাবনে বাস করে তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, তার পরবর্তীকালে তো এই মানে আমাদের ইয়েতে কৃষ্ণ কবিরাজ তো ইয়ে লিখেছে না চৈতন্য চরিতামৃত, তার নেক্সট পিড়িতে হলো প্রভুজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण हरि बोल दंडवत प्रणाम। अगला श्लोक 23 पात्रा तात्पर्य प्रभु तात्पर्य শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন আজ ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান ব্রাহ্মণত্ব দান করছে, আমেরিকানদের ব্রাহ্মণত্ব দান করছে মানে ব্রাহ্মণ দীক্ষা দিচ্ছে না ইউরোপিয়ান আমেরিকানদের, এবং সন্ন্যাস আশ্রম অধিষ্ঠিত করছে বলে কিছু মূর্খ মানুষ এই আন্দোলনের সমালোচনা করে। কিন্তু এখানে আমরা প্রমাণ পাচ্ছি যে মহাপ্রভু প্রদত্ত এই ভগবত প্রেম বিতরণের ইউরোপিয়ান আমেরিকান হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি বিচার নেই। যেখানে সম্ভব সেখানে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার করতে হবে। এইভাবেই যারা বৈষ্ণব হন তাদের তথাকথিত ব্রাহ্মণ হিন্দু অথবা ভারতীয়দের থেকে অনেক উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত বলে বুঝতে হবে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে পৃথিবীর প্রতিটি নগরে ও গ্রামে ভগবানের নামের প্রচার হোক। অতএব সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত পন্থার যখন প্রচার হলো তখন যারা তা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করলেন তারা কি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী বলে স্বীকার করা হবে না? মূর্খের মতো যারা তার প্রতিবাদ করে তারা ঈর্ষাপরায়ণ একদল পাষণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। কৃষ্ণ ভক্তরা তাদের সেই কথায় কর্ণপাত করেন না। আমরা যে পন্থার অনুসরণ করছি তা পঞ্চতত্ত্ব প্রवर्तित पंथा। हरि बोल हरि बोल। कोई जातिवादी भेद नहीं करना चाहिए, प्रचार भी करना चाहिए। और अगर कोई यूरोपियन अमेरिकन है लेकिन कृष्ण भक्त में पटु है और गुरुदेव है तो उनको स्वीकार भी करना चाहिए, जाति भेद करके अस्वीकार नहीं करना चाहिए। यस बंकिम प्रभु এখানে বলেছে যাদের নয় হরি বলতে নয়ন ঝরে তারা দু ভাই এসেছে রে, যারা জাতের বিচার করেন আরে তারা দু ভাই এসেছে রে, যারা আপনি কেঁদে সবাইকে কাঁদায় সেই তারা দু ভাই এসেছে রে, যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে তারা দু ভাই এসেছেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण हरि बोल। अगला श्लोक 24 लुटिए खाइया दिया भंडारो उजाड़े, लुटिया खाई दिया भंडारे उजाड़े, आश्चर्य भांडारो प्रेम शतगुण बारे, आश्चर्य ভান্ডারে প্রেম শতগুণ বাড়ে। এই পঞ্চতত্ত্ব যদিও সেই প্রেম ভান্ডার লুটপাট করে খেয়ে এবং বিতরণ করে তা উজাড় করলেন কিন্তু তাতে তা ফুরিয়ে গেল না। পক্ষান্তরে সেই আশ্চর্য ভান্ডার যতই বিতরণ করা হইল ততই তা শত শত গুণ বর্ধিত হলো। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। एकदम মানে অক্ষয় পাত্র কৃষ্ণ প্রেম जितना दीजिएगा उतना बढ़ेगा। শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে পরিচয় দানকারী এক ভণ্ড একবার তার শিষ্যকে বলেছিলেন যে সমস্ত জ্ঞান তাকে দান করার ফলে সবকিছু নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আরে এই ধরনের ভান্ডারা মানুষকে প্রতারণা করার জন্য এভাবেই কথা বলে। কিন্তু প্রকৃত পরমার্থ চেতনা এমনই পূর্ণ যে তা যত বিতরণ করা হয় ততই বাড়তে থাকে। জড়জগতে যখন কোনো বস্তু বিতরণ করা হয় তখন তা পরিমাণে কমে যায়, কিন্তু চিন্ময় জগতের ভগবত প্রেম বিতরণের ফলে কখনোই তা পরিমাণে कम হয় না। जो भक्त लोग आप लोग प्रचार कर रहे हैं तो बताइए जितना प्रचार कर रहे हैं उससे क्या ज्ञान बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত কোটি জীবের সমস্ত প্রয়োজনগুলি সরবরাহ করছেন, আর সেই অনন্ত কোটি জীব যখন কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে চায় তাহলে ভগবত প্রেমের কোনো অভাব হবে না এবং তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির অভাব হবে না। হরি বল। देखिए चिंता नहीं करना पड़ेगा, जीवन धारণের সমস্ত বস্তুগুলো प्रभुपाद बोले कभी अभाव नहीं होगा। प्रभुपाद देखिए एकदम पूरा जीवन दे दिया प्रचार के लिए। प्रभुपाद का पॉकेट में कुछ नहीं था लेकिन बाद में कभी भी प्रभुपाद को कुछ अभाव हुआ? हम लोग देखते प्रभुपाद का इतना बड़ा संपत्ति हो गया इस्कॉन का, प्रभुपाद पूरा कृष्ण भक्ति में पूरा इसको निचोड़ दिया और
अपना परिवार के लिए भी कुछ नहीं रखा, मैंने परिवार को कुछ स्टाइपेंड देता था, लेकिन कोई भी संपत्ति अपना परिवार वर्ग फैमिली इस्कॉन में कोई भी संपत्ति मैंने फैमिली मेंबर्स का होगा ऐसे कभी नहीं किया श्रील प्रभुपाद, है ना। प्रभुपाद शरीर रखने के आगे, अप्रकट होने के आगे श्रील प्रभुपाद का 108 मंदिर उन्होंने स्थापन कर चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। 10 साल कृष्ण भक्ति प्रचार होकर 108 मंदिर, अगर आप कैलकुलेशन करिएगा तो देखिएगा 10 साल माने कितना महीना हुआ, 120 महीना 120 महीना में 108 मंदिर, तो अगर एवरेज में एक मंदिर पर मंथ, हरे कृष्ण, एक महीना में एक मंदिर, एक महीना में एक मंदिर कहीं दिखाई, ये था उनका सक्सेस रेट। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे ऐसा कोई बिजनेसमैन है लेके आओ मेरे सामने। तो 40 रुपया को 40 करोड़ बना दिया, 40 करोड़ का, उससे भी ज्यादा। लिमिटेड अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं 40 रुपया का, इतना बड़ा। 40 रुपया तो प्रभुपाद ने लगाया ही नहीं, वो तो यहाँ पे आके ऑटो वालों को दिया उन्होंने। छिपीवाड़ा में वाला बोलता है कि उसने मेरे को ठग लिया, प्रभुपाद बोलते हैं ऑटो वाला को, क्योंकि उसको कुछ देना था वापस, उसने दिया नहीं, तो प्रभुपाद बोल रहे उसने मेरे को ठग लिया। अच्छा, 40 रुपया वापस भी लेकर आया प्रभुपाद जी? हाँ, वो वापस लेके आए। छिपीवाड़ा जब टेम्पल जा रहे थे, तो स्टेशन से छिपीवाड़ा जाने का 40 रुपया दिया, तो उसको रिटर्न करना था, तो उसने रिटर्न नहीं किया, पूरा रख लिया, तो प्रभुपाद बोल रहे मेरे को ठग लिया इसने। हरे कृष्ण। यस, बंकिम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, এই যে মহাপ্রভু তো শিবাসকে দিয়ে প্রমাণ করে গেছে। শিবাসকে মহাপ্রভু শিবাসকে জিজ্ঞাসা করে, শিবাস তুমি, আমরা যে প্রতিদিন আসি খাই, তোমার বাড়িতে তোমার ভাইজি থাকে, তুমি থাকো, নারায়ণ থাকে, তোমার ছেলে থাকে, তুমি তো শুধু হরিনাম করে সারা জীবন, তা তো চলে কি করে? তখন শিবাস কি করলো, মহাপ্রভু হাতটা ধরে নিয়ে ভিতরে গেল, ভিতরে গেলে এক গাছা দড়ি আর একটা মাটির হাঁড়ি দেখালো, বলে এটা কি? বলছে প্রভু তুমি তো গীতাতেও বলেছো যে অনন্য পদে তুমি যে তোমার মনে করে তুমি বহন করবে এবং নিজে বয়েছে দিয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, এখানে যে হরিনাম করে যদি যেদিন আমার 3 দিন দেখবো, 3 দিনে যদি আমি হরিনাম করে খাদ্য না পাই, আমি এই দড়িটা গলায় দিয়ে আমি ঈশ্বরধরীদের জীবন দেবো। তখনই মহাপ্রভু ওনাকে আশীর্বাদ করেছেন, শিবাস যেদিন লক্ষ্মী দেবী ভিক্ষা করবে অন্যের হবে, সেদিনও তোমার ঘরে অন্যের অভাব হবে না। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरि बोल। हरि बोल। वेरी नाइस, वेल रिसाइटेड, वेरी नाइस। और फिर श्रीवास ठाकुर को किसी के गाइडेंस में दे दिया, क्योंकि वो ज्यादा ही ऑस्टेरिटी था, ज्यादा ही माने वैराग्य था गृहस्थों के भी। शायद स्वरूप दामोदर किसी को गाइडेंस में दे दिया, बोला तुम इसका फाइनेंस देखना, ये ज्यादा ही ऑस्टेयर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন আমি এককভাবে শুরু করেছিলাম এবং আমাদের জীবন ধারণের জন্য কেউ কোনো রকম সাহায্য করেননি, কিন্তু আজ আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছি এবং এই আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। সুতরাং অভাবের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যদিও ঈর্ষাপরায়ণ মানুষেরা আমাদের হিংসা করতে পারে, কিন্তু আমরা যদি আমাদের আদর্শ অবিচলিত থেকে পঞ্চতত্ত্বের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, তাহলে ভণ্ড সাধু, সন্ন্যাসী, ধর্মযাজক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির সমস্ত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে এই আন্দোলনের প্রসারিত হতে হয় থাকবে, কেননা এই আন্দোলন সব রকমের জড় প্রভাবের অতীত। তাই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকদের কখনোই এই ধরনের মূর্খ পাষণ্ডিতের ভয়ে ভীত হওয়া উচিত নয়। भांडो कोথায় টাকা কোথায় पावे, ये क्या होगा वो क्या होगा। इसमें मेरा भी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अनुभूति हुआ। कितना बार बड़ा बड़ा हम लोग प्रोजेक्ट ले लेता है, कभी कभी स्पॉन्सरशिप के लिए पुजारी लोग बोलता है ये थोड़ा बना दीजिएगा, ये थोड़ा कर दीजिएगा, और हाँ 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 हो जाएगा ऐसे करके ले लेते हैं। फिर सत्य बात बता रहा हूँ, मैंने कैसे कैसे मेंबर्स लोग ठीक जुगाड़ कर देता है, और कैसे होता है भगवान जाने।
कभी कभी ऐसे उत्तेजना होता है ना, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, थोड़ा ये सिंहासन बना दीजिएगा, थोड़ा ये कर दीजिएगा, अभी सिंहासन बना देंगे, ऊपर सिंहासन, हाँ कर देंगे। अभी वो 2-3 लाख रुपया थोड़ी हमको मालूम था, उतना हमको मालूम ही नहीं था उतना, लेकिन भक्त लोग सब इतना सब मिलजुल के ठीक बंदोबस्त कर देता है। ऊपर सिंहासन हो गया, पूरा थाली, आरती प्लेट चांदी का, कितना लगा, 15-20 किलो का चांदी कहाँ दे गए हम लोग, लेकिन ठीक जुगाड़ हो गया, स्पॉन्सर भी आ गया। कैसे हो जाता है भगवान जानता है, सब भक्त लोग का कृपा है, आशीर्वाद है, ठीक भक्त लोग जुगाड़ कर देता है और बंदोबस्त हो ही जाता है। मेरा ये छोटा एक्सपीरियंस है, खुद एक्सपीरियंस है, मैंने देखा। इसीलिए प्रभुपाद बता रहे, लास्ट वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भक्त तो माध्यम है, सब करने वाले भगवान ही तो है। তাই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকদের কখনো এই ধরনের মূর্খ পাষণ্ডদের ভয়ে ভীত হওয়া উচিত না। कितना लोग नेगेटिव बोलते हैं, अरे इस साल 1500 नहीं हो पाएगा गीता, अरे मत करो, कौन माथा पच्ची करेगा, कौन स्टॉल लगाएगा, कौन ये सब करेगा, कौन। लेकिन फिर भी हर एक साल पहले थोड़ा स्लगिशनेस होता है, और फिर भी लीडर्स लोग के पास से देखिए स्टॉल भी लग जाता है, टुकुर करके लोग इधर उधर, गृहस्थ लोग पैसा दे देकर, और देना नहीं चाहिए गृहस्थों का जो आर्थिक उपार्जन है, शास्त्र में लिखा है। इतना साल क्लास करने के बाद अगर कोई कंजूस एक पैसा नहीं दिया भगवत गीता वितरण का, ना ही अपना श्रम दिया जाकर, तो बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। तो देना चाहिए वितरण में, भगवत गीता प्रचार के लिए लक्ष्मी देना चाहिए, चाहे वो जितना भी लेना चाहिए, इसका कर्तव्य है ये। हाँ, और ऐसे करते करते टुकुर करके ठीक हम लोग अपना जो सेट टारगेट करते होते अचीव हो गया। 1500 कब उड़ गया, अभी हम लोग 2000 छूने का प्रयास कर रहे हैं, और हो भी जाएगा शायद प्रभुपाद जी की कृपा से। तो और ऑफ कोर्स बहुत प्रयास है लीडर्स लोगों का, बहुत एकदम निस्वार्थ से और बहुत हिम्मत से उन लोग पूरा जान लगा देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए कभी भी कोई आध्यात्मिक टारगेट लेने में डरिएगा मत, मैंने सब भगवान की कृपा से हो ही जाता है। आप लोग भी इसका बहुत साक्षी कर चुके होंगे, देखे होंगे जरूर। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी, ही जाने भक्ति प्रेम स्वामी गुरु महाराज ना, मतलब हमें हर साल कुछ ना कुछ टारगेट लेते हैं भक्त लोग से। कितना जब पूर्णिमा आता है, भादवी पूर्णिमा, तो टारगेट लेते हैं कितना भागवतम सेल करेंगे इस साल, बताइए। तो हमने एक बार लिया था, हम सोचे पता नहीं कैसे कर पाएंगे, लेकिन ठीक हो जाता है। हमने देखा जैसा आप बोल रहे हैं ना, एकदम हो जाता है, और वो ठीक कोई ना कोई मिल जाता है, और स्पॉन्सरशिप करके कुछ भी हो जाता है। कोई ना कोई, और कहाँ से स्पॉन्सरशिप होता है वो भगवान ही जानते हैं। एकदम कभी इस साल हम लोग बहुत हम चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि पिछले साल बहुत ये तुलादान हुआ था। तुलादान होने से तुरंत स्कोर बढ़ जाता है ना, एक कोई बैठता है तुला में, बस 100-200 गीता निकल जाता है। इस साल एक भी तुलादान नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास किया, बहुत एडवर्टाइज किया, ये क्या वो क्या, ये तो डायलॉग बाजी हम लोग करते रहते हैं, लेकिन एक भी तुलादान नहीं। मैं बहुत चिंता में पड़ गए थे कैसे हम लोग टारगेट रीच करेंगे, लेकिन हो गया। फिर भी इस साल वो भागवत से चैतन्य चरितामृत ऐसे करके निकल गया। दोनों लीडर्स ने बहुत प्रयास करके बहुत भागवतम सेट और चैतन्य चरितामृत निकाल लिया, उससे पॉइंट्स वृद्धि हो गया। हर एक साल कुछ ना कुछ करके ठीक हो ही जाता है। प्रभु जी, अब डर नहीं लगता टारगेट लेने में? हम ले लेते हैं, महाराज जब पूछते हैं तो हम बोल देते हैं और हो जाता है। मैं तो डर लगता है, सच बोल बताओ, मैं उस तक पे अभी तक पहुंचा नहीं। इस बार नहीं, हमको ये पता है महाराज की से महाराज के सामने बोलेंगे तो वो कृपा करेंगे और हो जाएगा। लेकिन मैं उतना स्तर पे नहीं हूँ, मैं तो डर लगता है। इस बार जब टारगेट लेने के लिए बोला था, पिछले साल हम लोग का 1800 हुआ था या 1900 हुआ था ऐसे कुछ, मैंने 1500 बोला, कम करके बोला, क्योंकि हमको भी लगा कि फिर से इतना थोड़ा कम करके बोले, तो 1500 ही बोला था। हालांकि बढ़ना चाहिए ना, जितना दिन जाएगा उतना टारगेट बढ़ना चाहिए। लेकिन लोगों को बोलने से लोग बोलेगा कि हम पिछले साल लिया था, मेरे घर में अभी भी पड़ा हुआ है। तो हम लोग का भी घर में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। जो एक बात बताइए, हम लोग जो इस्कॉन का काउंटर
से कभी कभी बुक्स खरीदते, कभी ये गिफ्ट भी खरीदते हैं ना, कभी कहीं जाने से, मायापुर जाने से 2-4 बुक खरीद लिए। सत्य बात बोलिए, सब बुक क्या पढ़ लिया आप लोग ने? ना हमने, वो पढ़ा ही रहता है, पढ़ा हुआ है, पूरा पढ़ा हुआ है, एकदम पूरा भरा पढ़ा हुआ है। हाँ, लेकिन फिर भी तो अपना लक्ष्मी मठ में गया ना, मठ प्रतिष्ठा में गया, मंदिर में गया, और उसी से तो मंदिर चल रहता है। ये गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है 3 आश्रम को फाइनेंशियली सपोर्ट करना। प्रभु और जी हम 3 लोग आश्रम, डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं ना, बहुत लक्ष्मी लगता है हम लोग का, बहुत लक्ष्मी लगता है। हाँ, और 3 आश्रम का कर्तव्य है गृहस्थ आश्रम को पालन करना स्पिरिचुअली। वो 3 आश्रम, गृहस्थ आश्रम को पालन करेगा स्पिरिचुअली, और गृहस्थ आश्रम इन रिटर्न 3 आश्रम को पालन करेगा फाइनेंशियली। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस प्रभु जी, समझ में आया। ये तो है। तो अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे आप फाइनेंशियली करिए, कोई बहुत है श्रम से करा देता है, या दोनों एक्सेट्रा, बहुत जरूरी है। ओके, आगे थोड़ा करते हैं। कहाँ है हम लोग? 25 नंबर श्लोक। ओके, उच्चोलीलो प्रेमो बन्ना चौध के बेरा। बहुत हम धन्यवाद करते हैं। स्पीकर वीकर वगैरह कितना कुछ हम लोग खरीद लिया, और ड्रामा का सामान कितना पूरा भर गया, रूम पूरा ड्रामा का भर गया, सब भक्त लोग का डोनेशन की वजह से। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम का बहुत लंबा लिस्ट है। बहुत लोग बहुत डोनेशन दिया, और इतना सामान पूरा भर गया उन लोगों की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ड्रामा एक बहुत अच्छा माध्यम है भक्त लोग को एंगेजमेंट कराने का। और हम लोग भी ऐसा कुछ कंजूसी नहीं किया कि कोई भी हम लोग का ड्रामा सामान है किसी को देंगे नहीं, ये हमारा है बहु, ऐसे नहीं किया। कोई भी कुछ भी कभी भी मांगता है ड्रामा सामान, हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे नहीं, ठाकुर जी की सेवा में जितना लगेगा उतना अच्छा होगा। और हम लोग भी ऐसे ही पॉलिसी रखे कि कभी परवाह नहीं, कोई टूट जाएगा, किसी को नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वैसे कभी नहीं किया। ये जितना यूज होगा उतना शुद्धिकरण होगा हम लोगों का, जितना यूज होगा। वो ब्रॉड माइंडेडनेस भी रहना चाहिए, हम लोग का ब्रॉड माइंडेडनेस भी रहना चाहिए कि ये हमारा है, ये और कहीं नहीं जाएगा। ऐसे नहीं, कोई भी भगवान का सेवा में लगाएगा, ले जाए, और अगर टूट भी जाएगा और 10 आ जाएगा। वो आग लगा था कलकत्ता राधा गोविंद मंदिर में, भगवान का कपड़ा जल गया, लेकिन उसका 3 गुना पैसा आ गया एक हफ्ते के अंदर। 3 गुना पैसा आ गया एक हफ्ते के अंदर, कैन यू इमेजिन? और फिर भगवान का सब एकदम फ्रेश नया डिजाइन का सब पूरा एकदम पूरा उनका वार्डरोब चेंज। एक हफ्ता क्या, दूसरे दिन सवेरे ही आ गया। दूसरे दिन सवेरे ही भगवान के कपड़े आ गए कि भगवान क्या पहनेंगे। और भी ज्यादा सुंदर वो कपड़ा है, और भी ज्यादा। उसीलिए भगवान को नया वार्डरोब चाहिए था। उसीलिए ये सब कभी भी नैरो माइंडेडनेस के लिए नहीं है। कृष्ण भक्ति प्रचार बहुत संकीर्ण मन होता है ना, छोटा, और हम और ऐसा नहीं है। जैसे गौरांगा महाप्रभु का हम लोग अनुगामी है, रूप गोस्वामी का अनुगामी, दे वर वेरी ब्रॉड माइंडनेस है, बहुत ब्रॉड माइंड था, सबको लेकर चला महाप्रभु, सबको लेकर चला, चाहे वो पापी तापी जो तो छिलो हरि नामे उद्धारी लो, ऐसा ब्राह्मण या ऐसे कभी नहीं, एवरीबडी लेकर चला। वैसे एवरीबडी लेकर चलने का लोगों का मेंटेलिटी होना चाहिए, स्पेशली भक्त लोगों का। संकीर्ण चित्त नहीं होना चाहिए, वाइड ब्रॉड माइंडेडनेस होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे शिक्षा गुरु बोलते थे कि आप यदि क्लास करने भी जा रहे हैं, आपके 10 रुपया भी लग रहा है तो आपके सेवा में ही गया है। हमेशा यही बोलते थे। ओके, उच्छलिलो प्रेम बन्ना चौदी के बेराय, उच्छलिलो प्रेम बन्ना चौदी के बेराय, स्त्री वृद्ध बालक जुबा सबारे डुबाय, स्त्री वृद्ध बालक जुबा सबार डुबाय। প্রেমের বন্যা উঠে চারিদিকে বিস্তৃত হতে লাগলো, এবং তার ফলে স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবক সকলেই এই প্রেম বন্যায় নিমজ্জিত হলো। এইভাবে যখন প্রেম ভান্ডারের ভগবত প্রেম বিতরণ হয়, তখন তা বন্যার মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীধাম মায়াপুরে কখনো কখনো বর্ষার প্লাবন হয়। এটি একটি ইঙ্গিত যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান থেকে ভগবত প্রেমের বন্যা সারা পৃথিবীতে প্লাবিত করবে, কেননা তা স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবক সকলকেই সাহায্য করবে।
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন এতই শক্তিশালী যে তা সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করতে পারে এবং সর্বস্তরের মানুষকে প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে पारे। कल हम लोग एक दोपहर का मीटिंग अटेंड कर रहे थे, दयाराम प्रभु ने होस्ट किया था, हम लोग का टेम्पल प्रेसिडेंट, और एक मुरली श्याम प्रभु है साउथ इंडिया में, तो प्रचार किया ऑनलाइन के माध्यम से कोविड में 1000 उन्होंने, हम लोग जैसे भक्ति वृक्ष है, कोविड के माध्यम में ऑनलाइन प्रचार, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रचार 1000 ग्रुप्स बना लिए, और कितना 70-80 हजार, एक लाख 20,000 भक्त लोग को जुड़ाया, 1,20,000 भक्त लोग को जुड़ाया एक व्यक्ति। ये कोविड इमेजिन 1000 भक्ति वृक्ष, क्या भक्ति वृक्ष ने, मैंने उनको दूसरा कुछ नाम दिया था उस समय, ऐसे प्रचार किया। कल उन्होंने आकर हम लोग को दोपहर को क्लास दिया, और उसको उनका जो मॉडल है कैसे उन्होंने ऑनलाइन प्रचार किया वो हम लोग को और आएगा, अभी ट्रेनिंग देंगे, अभी और कुछ सेशंस होगा। तो देखिए किस तरह से चैतन्य महाप्रभु এখানে जो लिखा है কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন এত শক্তিশালী যে তার সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করতে পারে এবং সর্বস্তরের মানুষকে প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। और एक श्लोक कर लेते हैं 26 नंबर। सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंधगण प्रेम बन्याय डुबाइलो जगतेर ओजन। थोड़ा जल्दी पढ़िए। डुबाइला जगतेर ओजन। কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করলো এবং সজ্জন দুর্জন পঙ্গু জড় অন্ধ आदि সকলকেই তাতে ডুবে গেল, প্রেম বন্যা में डूब गया। तो খারাপ নেই, ডুব গিয়া মানে कोई प्रॉब्लम नहीं है। অর্থাৎ তাৎপর্য এখানে আবার উল্লেখ করা যায়, যদিও ঈর্ষাপরায়ণ পাষণ্ডরা প্রতিবাদ করে যে ইউরোপীয় আমেরিকারা যোগ্য পবিত্র ধারণ করা অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করার যোগ্য নন, কিন্তু তাদের একবার বিবেচনা করে দেখা উচিত যে সজ্জন দুর্জন নির্বিশেষে সকলেই আন্দোলনে যোগদান করতে পারে। সাক্ষাৎ মহাপ্রভু বললেন, কবিরাজ গোস্বামী বললেন, কেননা এই আন্দোলন রক্ত মাংসের তৈরি জড়দেহের অপেক্ষা করে না। যেহেতু এই আন্দোলন পঞ্চতত্ত্বের অধ্যক্ষতায় কঠোরভাবে শুদ্ধ ভক্তির সহায়ক বিধি নিষেধগুলি পালন করে যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তাই কোনো বাহ্যিক প্রতিবন্ধক এই আন্দোলনকে বাধা দিতে পারে না, चाहे वो जाति हो, कहीं फिरंगी हो या अमेरिका वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। জগত জীবের यस বলুন। কি আমি প্রতিদিন যখন হাঁটতে বেরোই 200 থেকে 250 লোককে আমি প্রতিদিন হরে কৃষ্ণ হরি বল রাধে রাধে উচ্চারণ করাই। এটা কি প্রচারের মধ্যে পড়বে না মানে আত্মকেন্দ্রিক হবে? যেহেতু আপনি করেন এটা আত্মকেন্দ্রিক হবে, বললে প্রচার না সবাই বলছে, আমি বলছি এবং সবাইকে বলাচ্ছি, মানে আমি বলার কারণ কি 200 থেকে 250 লোক নিজে হাত তুলে নিজেকে, আমি যেদিন বলি না তারাও হাত তুলে নিজেরা বলতে থাকে, মানে এমন ট্রেনিং হয়ে গেছে। আমি দূর থেকে আমাকে না দেখলেও, দূর থেকে আমি ছায়া দেখলেও হাত তুলে হরে কৃষ্ণ বলে রাধে বলে, এটা কি মানে প্রচার করে আত্মকেন্দ্রিক? এরকম করে একটা ক্লাস আয়োজন করুন আপনার এরিয়া, যখন 200-250 ভক্তরা আপনাকে হরিবল হরে কৃষ্ণ বলছে, একটা কোনো সেন্টার ছোট একটা খুলুন, আমরা গিয়ে এখানে সব সহযোগিতা করবো, এখানে ক্লাস হবে, সাপ্তাহিক ক্লাস হবে, ভাগবত গীতা ক্লাস করাবো, আপনিও করাতে পারেন, আপনার তো অনেক জ্ঞান আছে, একটা সেন্টার খুলুন। এত যখন লোক আপনার সঙ্গে যুক্ত আছে, बहुत अच्छा फेवरेबल है, प्रभु का अच्छा टीचिंग कैपेसिटी है और सब बहुत कम्युनिकेशन है, अच्छा स्किल्स, तो खोलना चाहिए। जिनका जो सुविधा है सबका बने, उसका लाभ उठाइए, प्रचार तो करने उतर जाइए। अगर बड़ा घर है, ये है, वो है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, इसको सेवा में लगाइए। हमको अभी भी मालूम है, ये हम लोग का अशोक अग्रवाल प्रभु है, अशोक अग्रवाल प्रभु, बहुत उम्र हो गया उनका, शायद 21 में है, बहुत पुराना भक्त है, परम पूज्य भक्ताचार्य स्वामी गुरु महाराज का बहुत पुराना शिष्य है, और
हाँ, उस उम्र में भी वो वीआईपी रोड बागुघाटी एरिया में कोई मंदिर में बैठ करके कीर्तन करते हैं, उनका 3-4 क्लास भक्ति विश कराते हैं। अभी हमको मालूम नहीं, अभी उम्र हो गया होगा अभी, लेकिन हम बता रहे थे 70-75 ईयर्स में बैठ के कीर्तन करते हैं बागुघाटी में मंदिर में, और बहुत डेली भक्ति विश चलता था उनका। 4-5 भक्ति विश चलता था। अशोक अग्रवाल प्रभु, उनका नाम है अशोक कृष्ण प्रभु। तो इसीलिए जीवन को सार्थक किया, और प्रभुपाद का पूरा अनुसरण करके प्रभुपाद का जैसे शिक्षा मिला उसको उतारा उन्होंने। यहाँ बहुत लोग शिक्षा मिला है, लेकिन ना अपना घर फ्लैट और ना ही अपना शिक्षा का ज्ञान को भगवान के सेवा में लगाते, नहीं लगाते। एक नंबर का कंजूस, नहीं लगाएगा, ना अपना समय देता है, ना अपना ज्ञान बांटता है, ना अपना घर को सेवा में लगाते, कभी नहीं, एकदम नहीं करेगा। इतना कठोर तात्पर्य पढ़ने के बाद भी एक ठो भी मैंने सिंपल कुछ हृदय में टच करके प्रभावित नहीं किया कि प्रचार में उतरे। या तो आलस्यता है, या तो जैसे मैंने बताया कंजूस, बहुत नंबर 1 कंजूस। नहीं, दे विल नॉट गिव टाइम, मनी और नीदर देयर हाउस फॉर कृष्ण कॉन्शियस प्रचार। लेकिन इतना ज्ञान इनपुट हो रहा है, लेकिन वो समझ में नहीं आता है कि इतना ज्ञान इनपुट करके करेगा क्या व्यक्ति। एक दिन तो दिमाग बहुत इग्नोरेंस है, बहुत आदमी के अंदर में इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस इतना कुछ हम इसलिए बता रहा, आप बता रहा, एक हम वॉकिंग करते हैं, हमको एक दिन मारा, थप्पड़ मारा। तो आपको पहले क्लास से बताया था, हमको थप्पड़ मारा, वो आदमी हम मेरा फैन हो गया। हरे कृष्ण। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, हमको समझ नहीं आता है कि इतना ज्ञान इनपुट हो रहा है, इतना हेवी क्लास, इतना फ्रीक्वेंसी क्लास आई डोंट थिंक कहीं होता है। इतना इनपुट करने के बाद भी कुछ भी प्रचार नहीं करता है। नो, नथिंग, बस इनपुट है। क्लास टाइमली बैठ जाएगा सुन ले, लेकिन नो, नथिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। प्रभुपाद का इतना कड़ा तात्पर्य, अलग अलग आचार्यों का इतना कड़ा तात्पर्य, क्या उन लोग का हृदय को अभी तक स्पर्श नहीं कर पाया? God knows. এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতলা হরি, সবে বলো হরি হরি, প্রভুপাদ কি জয়।